ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اہل سنت، آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے میری اور علی اصغر دیوبندی کے مابین، اور آپ دیکھیں گے یہ اصول شرط کا شور کرنے والا دیوبندی کس طرح اصول کے نام سے بھاگتا ہے اور ایسی شرائط لاتا ہے جو خود سخت کی شرطیں ہیں، کیونکہ بھاگنے کے لیے اس طرح کی شرائط وغیرہ لاتا ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح یہ ذلیل ہوا، اور آپ آگے سنیں گے پوری مکمل آڈیو کو سماعت کریں، آپ کو بڑا ہی لطف آنا ہے اور آپ کی علم میں بھی بڑا اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے اس نے الیاس گمن بیٹی چمن، جو خود اسی کے دیوبندیوں نے الیاس گمن کی حرکات و سکنات پر کتابیں لکھی ہیں، اس کا رد کیا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ لواطت کیا، اس کے دفاع میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اور کس طرح اس نے جو قیاس کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ من ذالک، اس کے دفاع کرنے کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پر اس نے اعتراض کیا، جو کہ فقہی مسئلہ ہے، جو بیوی کا شوہر کی شرمگاہ کے تعلق سے، تو اس کا جواب بھی نہیں لیا اس نے۔ تو سامعین حضرات یہ دیکھ لیں اسکرین پر، حالانکہ یہ اس پر بات ہی کر لیتا تو میں اس کو وہ ذلت کا سامنا کراتا، کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور شیخین نے اس پر بھی لکھا ہے، سوال کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے اور وہیں سے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو ناقل ہیں۔ بہرکیف یہ آپ دیکھ لیں اسکرین پر، یہ ہے نجم الفتاوی، یہ ان کا بہت بڑا مولوی حضرت شیخ الحدیث مفتی سید نجم الحسن امروہی، ہاں جی، اور یہ جلد نمبر اس کی ہے 5 خامس، اور یہ صفحہ نمبر ہے 471۔ اب آپ دیکھ لیں وہی بات جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے پیش کی تھی، جس کا جواب بھی نہیں لیا اور بھیجی بھی نہیں اس نے مجھے۔ آپ دیکھ لیں عبارت ہائی لائٹ ہے، لکھا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھوتا ہے اور بیوی اس کی شرمگاہ کو تاکہ مرد میں حرکت بڑھ جائے، تو کیا اس میں کوئی حرج سمجھتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ انہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اب یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ دیکھ لیں، یہ انہیں کی ہے، اور ان مولوی نے اس میں حوالہ بھی دیا در مختار کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی بات وہ پڑھ رہا تھا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، وہ لکھا، حالانکہ فقہی مسئلہ ہے، علماء فقہ نے اس پر لکھا ہے، اور اس مسئلے کی وضاحت عالمگیری میں بھی ہے، یہ کبھی بات کرے اس پر تو پھر میں اس کو بتاؤں، انشاءاللہ حوالے جات میں لاؤں گا۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، اس کا جواب ضروری تھا تاکہ ہمارے کسی بھائی کا کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے، اور دیوبندی بھی دیکھ لیں کہ یہ بات جو کرتے ہیں وہی چیز ان کی کتابوں میں ہوتی ہے، جس پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کو گھر کی خبر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ حضرات آگے کی آڈیو جو اس کی میری گفتگو ہوئی ہے اس کو سماعت کریں، آپ دیکھیں کس طرح یہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے، اور کس طرح کتنے موضوع پر یہ بھاگا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہاں کون؟ میں رفایت علی بات کر رہا ہوں، اچھا، کہاں سے؟ احمد آباد۔ وہ حفایت رضا انصاری؟ جی اصغر تھا، کیا حال ہے؟ طبیعت الحمدللہ، طبیعت وغیرہ خراب تھی کیا؟ بہت دن سے آپ نظر نہیں آ رہے۔ نہیں، طبیعت تو ٹھیک تھی، مصروفیت کچھ زیادہ تھی۔ اور فارغ تمہاری ہو گئے؟ بتاؤ؟ نہیں، فارغ تو نہیں ہے، وقت نکالا ہے تھوڑا۔ اور طبیعت وغیرہ تمہاری کیسی ہے؟ زندہ ہو ابھی؟ الحمدللہ۔ مرد ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق ہمارے یہاں مردہ بات کرتا ہے کیا؟ نہیں، عقیدہ تو آپ کا ہے، جو قبر سے آواز بھی آتی ہے، 2-4 آنے بھی مل جایا کرتے ہیں۔ بہرحال ادھر ادھر کی بات نہ کر کے میں یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے میں جو میں نے فون کیا ہے، نہیں دیکھو، تو غلط بات کر بھاگنا نہیں چاہیے فیض صاحب۔ جب آپ کوئی بات ایسا کہیں نا تو پھر جواب لیں، اور نہ بات نہ کریں، جو وہ چھڑے بات نہیں اس کو۔ ابتدا آپ نے کی، جواب میں نے دیا ہے۔ آپ کے احمد یار خان نعیمی نے حیات حکیم البند کہہ رہا ہے کہ کشف و کرامات جو ہے عقیدے نہیں ہوتے، اور وہاں جو ہے آپ جو بتا رہے ہیں وہ کرامت ہے۔ تو میں نے استعمال کیا ہے، میں نے الزامی جواب دیا ہے۔ اتنے دن بعد آئے، سننا میری بات سننا، الزامی جواب کر نہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ دے دیا آپ نے جواب۔ میں آپ اصل پوائنٹ پہ آ جاؤں۔ میں نے جو حوالہ دیا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ میں اصل پوائنٹ پہ آ جاؤں۔ نہیں، جو اس کا جو پہلے ہاں کی نہ بولے آپ نے یہ کہا ابتدا میں کہ میرے یہاں، میرے دھرم میں، میرے متعلق آپ نے کہا کہ آپ کے دھرم میں مردہ بات کرتا ہے، برابر؟ تو میں نے کہا آپ کے دھرم کے اندر تو قبر سے 2 آنے ملا کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ آپ کا عقیدہ ہے،
आपने कहा बात अकीदा है खत्म हो गई। रिफायत साहब, हाँ तो बात खत्म हो जितने गई दिन ना। बात आए घबराए नहीं, आराम से बात करें। मैं घबरा नहीं रहा हूँ। आपने अकीदे का जुमला इस्तेमाल किया है, ठीक लेकिन है ठीक है, आपसे तो वो एतकाद रखकर ही तो वो कब्र पर गए थे, कैसे ठीक है, या कैसे बिना ठीक है? तो बिना एतकाद के चले गए थे। जब उन्हें क्या? एतमाद था इस चीज का कि मुझे वहां से 2 आने मिलेंगे, वो कहा भी था, कब्र से आवाज भी आई थी कि तुझे मेरी कब्र से 2 आने मिला करेंगे। बहरहाल मैंने बात कुछ और करने फोन किया है। बहरहाल नहीं, पहले एक का खुलासा करें, आगे जाए, क्योंकि आगे भी जवाब दूंगा फिर हम दूसरा भागेंगे आप। तो अल्लाह मैंने अकबर। कहा आपको कि हयात हकीमुल उम्मत में अहमद यार खान नईमी साहब ने सफ़ा नंबर 182 में लिखा है, अकायद के मामले में कश्फ व इल्हाम मुअतबर न होंगे, बल्कि पुख्ता दलील जरूरी है। तो आपने कहा, आपने अकीदे का जुमला इस्तेमाल किया। तो आपके यहाँ कृष्ण कन्हैया हाजिर नाजिर तो हो सकता है, लेकिन देवबंदी मुसलमान कलमा गो है। इस कलमा गो के मुतालिक तमीद ईमान के अंदर अब क्या आला हज़रत ने तकफीर से मना किया है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को पेश करके। वो कलमा गो आपके यहाँ जो है मरने के बाद, इंतकाल के बाद उनके यहाँ कश्फ करामात जो है ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, बातिल है, इसलिए आप एतराज़ करते हैं। तो आप जब इल्ज़ामी जवाब सवाल करते हैं या कोई जवाब बात करते हैं, उसका रद्द करना हमारी जिम्मेदारी है ना, उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो ऐसी बात न करें जिसकी पकड़ करूँ मैं और भागें आप। पहले तस्लीम करें हयात हकीमुल उम्मत का मैंने जो इबारत पढ़ी है ये गलत है कि सही है, कि कश्फ करामात जो है ये अकायद नहीं होते। पहले तस्लीम करें, फिर आगे कोई जुमला इस्तेमाल करना, कोई टॉपिक छोड़ना। हाँ, बात पूरी कर लें आप, जब हो जाए तो बताना। हाँ, तो ये मैंने जो हवाला पढ़ा कि कश्फ करामात ये अकायद में से नहीं है, ठीक है। अकायद के मामले में कश्फ इल्हाम मुअतबर न होंगे, बल्कि पुख्ता दलील, पुख्ता यानी कतई अकीदे में कतई चाहिए। नहीं, आपने रामकृष्ण की भी बात की थी, उसको दोहरा दें आप। तो ये सही कहा कि नहीं कहा? हाँ, आपने रामकृष्ण का भी जिक्र किया, इसका पहले जवाब दें, फिर आगे इब्तिदा आपने वहाँ से की थी, उसको भी दोहरा दें। आगे इसका जवाब दें, इब्तिदा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, दोहराते हैं उसको, रिकॉर्ड हो गया है। अभी जो आपने दोबारा गुफ्तगू जो की है, ये जो मुझे जवाब दिया है आपने, मैंने आपको जो वक्त दिया, आपने इब्तिदा जो गुफ्तगू की थी, आए हुए हैं, आप हिम्मत करें। मैं हिम्मत ही करके फोन किया है मैंने असगर साहब। आप एक काम करें, बात किससे कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप किससे, आप दलाइल के बादशाह से बात कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे यार, इतने दिन बाद मैंने आपसे बात किया है। तकरीबन 1 साल गायब थे आप। नहीं, तकरीबन 1 साल तो नहीं, समथिंग 7-8 महीने समथिंग, इतना मैं दूर रहा हूँ सोशल मीडिया से। अभी नहीं आई तो सुने, पहले आपने कहा कि इब्तिदान जो आपने कहा वो बात कर छोड़े। इब्तिदा मैंने नहीं कहा, इब्तिदा मैंने आपके हयात हकीमुल उम्मत की इबारत छेड़ी मैंने। ठीक है, वो तो इस्तेमाल ना करें। नहीं, वो आपने बात छेड़ी थी, उसका जो जवाब आपने दिया था, जो मैंने कहा था कब्र से 2 आने मिला करते थे, आपने जो कहा था कि मुर्दे, आप जो मेरे यहाँ बरेलवियत में मुर्दे बोलते हैं, तो आपने इसके जवाब में मैंने कहा था कि वो कब्र से 2 आने भी मिलते हैं, कब्र से आवाज भी आती है, ये आपके यहाँ भी है। बहरहाल आपने उसको जो जवाब दिया, और आपने ये जो कहा, सुन मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने देंगे। देखिए, मैंने कितने इत्मीनान से आपकी बात सुनी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपके कितने इत्मीनान से बात सुनी, और मैंने आपको वापस से मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ कहना हो तो अभी और कह लें, आप बोलने पहले चले बोलें। जवाब पहले इसका देंगे आप। हाँ, आपने कहा आपके यहाँ से मुर्दा आता था कब्र से, और जो है 2 आना फलां वाला इतना बस दिया करता था, आपने कहा। तो मैंने कहा, और आपने इसको अकीदा बनाया है, आपने कहा कि आपका अकीदा है, आपके जुमला इस्तेमाल की, इसलिए मैंने आपकी पकड़ की। तो मैं इसे आपको पूछना चाहता हूँ, हयात हकीमुल उम्मत में लिखा है कि अकायद के मामले में कश्फ करामत मोतबर ना होंगे। तो आपने जो कश्फ करामत को अकीदा कहा, आप सच हैं या आपके हकीमुल उम्मत कह रहे हैं कि अकीदा नहीं होता कश्फ करामत, वो सच है? ये पहले से खुलासा कर दें, आगे गुफ्तगू बढ़ेंगे। झूठा बोला, दोनों में झूठा बोला। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, वो आपने ये, मैंने दोबारा मौका दे रहा हूँ, और बोल रहा हूँ तो बोल लीजिए, फिर मैं शुरू करूँ। आगे भागना नहीं, आप इसी का जवाब दें। अरे मैं भी कह रहा हूँ यार इतने घबरा क्यों रहे हैं यार असगर साहब, इत्मीनान से बात करें, इतना डर क्यों हूँ यार? बाद में बात कर रहा हूँ, कम से कम सुने। तो आपने जो ये बात कही थी, इब्तिदा जो की थी, आपने रामकृष्ण से शुरू की थी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो रामकृष्ण की बात आपने छेड़ी कि हमारे यहाँ रामकृष्ण वगैरह जो है
नाउज़ बिल्लाह गालिबन आपने नबी के या वली के कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए थे کہ یہ ہیں, تو ہندوازم کا بھی ذرا مطالعہ کر لیں کہ رام کرشن آپ کے یہاں نبی اور رسول ہیں. ہندوازم کتاب کے اندر آپ دیکھ لیں, تذکرۃ الرشید کے اندر دیکھ لیں, اس میں آپ کے حوالے کی بات نہیں کرنے کا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں, آپ کو خبر ہونی چاہیے. اس میں گرو نانک کو ولی کہا گیا. حوالہ مانگ رہا ہوں, سوانح کاشمیر سارے حوالے لیجیے بہت لیجیے, ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ بات کسے کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 98987658. میرے پاس سیو ہے, مجھے آپ ذرا بولنے دیں گے. رکو میں نمبر سیو کر رہا ہوں. 9898 رکیں میرے پاس آپ کے 2 نمبر ہیں. بول نہیں میں نمبر ذرا تاکہ آپ کو حوالہ بھیج سکوں. میں حوالہ بھیجا آپ نے؟ روکیں ایک سیکنڈ. 98987658 7658 765828. چلیے لو, اگر مجھے بلاک کیا ہوا ہے تو اوپن کیجئے. یہ حوالے جات آپ کے پرسنل میں نے سینڈ کر دیے ہیں. 4 اسکین سے میں نے بھیجے ہیں فی الحال. دوبارہ بھیجیں میں بھیج رہا ہوں آپ کو. آپ کو دیکھ لیں, آپ آدھا میرے پرسنل میں. ایک بھیجنا, اس کا جواب دینا ہے, لینا ہے, ٹھیک ہے. ایک بھیجنا ہے, سارے نہیں بھیجنا. یہ آپ کی اوقات تو صحیح نہیں. اس سے پہلے بھی کل یار یہ ٹھیک ہے نا, ہمارا کرو. دیکھو میرے سامنے نہیں, ایک بھیجو میرے سامنے بالکل نہیں, میرے سامنے بالکل نہیں. یہ چیز نہیں, یہ چیز نہ کریں. چلو سرائے طے کر لیں. دیکھیں یہ دیکھیں شرائط طے کر لیتے پہلے. شرائط کیا طے کریں گے آپ؟ میں نے گفتگو آپ سے دیکھیں سنیں, میں نے جو گفتگو کرنی تھی علی اصغر صاحب, میں نے آپ سے جو میری بات تو سنیں, گھبرائے نہیں, ارے گھبرائے تو نہیں, میری بات سن لیں. میں ایک جملہ عرض کروں گا, ایک جملہ یار اللہ یار اتنی بکواس. ارے اللہ کے بندے میں ایک جملہ عرض کروں گا بس. شرائط طے کرو. ہمیں اللہ کے بندے ایک جملہ عرض کروں گا. شرائط طے کرو. تم جواب نہیں دے رہے میری بات کا. شرائط طے کرو. دیکھیں عوام سنے گی, تمہاری عوام ہی سنے گی. جوتے ماریں گے. شرائط طے یقین کر رہا ہوں میں, شرائط طے کرو. میں یقین دلا رہا ہوں. بات نہیں کروں گا. آپ کو میں نے ٹاپک ہی نہیں ہے جس کو میں بات, یہ ٹاپک ہی نہیں تھا میرا, بات آپ نے شروع کر دی ہے. یار علی اصغر صاحب نہیں, جس ٹاپک پر میں گفتگو کروں گا اس پر شرائط سے بات کروں گا انشاءاللہ. کوئی بات دیکھیں دیوبندی حضرات, آپ دیکھیں یہ آپ کے مناظر علی اصغر صاحب, وہ سمجھ جائیں گے علی اصغر کتنا سچا ہے اپنے عقیدے میں, اپنی دلائل دینے میں, شرائط طے کرنے میں. بالکل کیسے بھاگتا ہے. بالکل وہ دیکھ رہا ہے کون بھاگ رہا ہے. علی اصغر صاحب شرائط طے کرو. اچھا مجھے جو بات کرنی ہے, کوئی بات سنوں گا نہیں میں. ارے ٹاپک تو سنیں. کوئی بات نہیں, کوئی ٹاپک جس سے بات کرنے کے لیے میں نے فون کیا ہے. پہلے اللہ کے بندے پہلے عنوان ہوتا ہے یا شرائطیں ہوتی ہیں؟ شرائط بغیر کوئی بات نہیں. شرائط لو, تم سنتے نہیں ہو, اپنے اکابر کی بات کو مانتے نہیں ہو. میں نہیں سنتا ہوں, اور موضوع سے بھاگتے رہتے ہو. میں نہیں سنتا ہوں. شرائط, ارے اللہ کے بندے میں کتنا سن رہا ہوں, تو ہمارے کتنے اطمینان اور سکون سے میں بات کر رہا ہوں, اور اس بات کو عوام دیوبندی بھی سن لے کہ میں کہہ رہا ہوں پہلے عنوان طے ہوتا ہے. شرائط بغیر کوئی بات نہیں. پہلے ٹاپک طے کر لے اللہ کے بندے, ٹاپک تو طے کر لے اللہ کے بندے. پھر شرائط طے کرو گے. ارے تو شرائط بعد میں ہوتی ہے پہلے ہوتی ہے؟ ہاں پھر شرائط طے کرو گے نا. نہیں شرائط پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے؟ تو پہلے کر لو. پھر نہیں پہلے عنوان کے شرائط عنوان کے مطابق طے ہوتی ہے کہ پہلے شرط کر لو عنوان کوئی بھی شرط ہو, پھر بعد میں شرائط طے کرو گے نا. تو کیا مطلب ہے میرا یہ بات کہنے کا؟ ہاں تو وہ ہاں بولو نا, تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ ہاں بولو نا. میں بھاگ رہا ہوں, اللہ اکبر. ہاں تو بولو. ہاں تو یار اصغر علی حکیم بتاؤ, تم سے بات کرتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. بول تو دو. ہاں تو پہلے ٹاپک ہوتا ہے, تو بھائی پہلے ٹاپک ہوتا ہے, اس کے بعد شرط ہوتی ہے. ارے ہاں بھائی شرط طے کر لینا پہلے, بات تو میری سن لے. دقت کیوں آ رہی ہے تم کو؟ دقت آ رہی ہے. ارے تمہیں موت آ رہی ہے سننے کے لیے, بس اسٹارٹ ہو گئے ہو. ٹاپک بولو. ہاں تو جو تم نے یہ ہندوازم کی بات چھیڑی تھی اور یہ رام کرشن کا ذکر کیا, تو ذرا اپنے گھر کا بھی ذرا دیکھ لیتے. ٹھیک ہے جی,
ये मैंने 4 स्कैन दे दिए हैं, लेकिन तुम मुझे पढ़ने नहीं दोगे। पहले मुझे उम्मीद है मुझे पढ़ने नहीं दोगे। क्या टॉपिक रहेगा? टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक, हाँ टॉपिक सुनो। सामने इकराम आप देख लीजिए अभी तक की अरे मौजू बोलो, तुम्हारा मौजू क्या रहेगा? मौजू मेरा ये है, हाँ सुनो अभी गालिबन हफ्ता पहले की शायद तुम्हारी, अरे मौजू बोलो, मौजू बता रहा हूँ। अबे इतना बोलो, अभी असगर तुमसे मुहावरा करूंगा, लेकिन मौजू ये रहेगा। इतना बोलो, तो मैं बात पूरी तो कर लूँ। नहीं खाली इतना बोलो, अरे वो हालत करूंगा, अरे वो हालत नहीं पढ़ूंगा, डरो नहीं अली असगर, डरो नहीं, कुछ नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे घर की, डरो नहीं। खाली मौजू बोलो, मौजू। हाँ मैं बता रहा हूँ। इतना डर क्यों रहे हो यार, इतना डर क्यों रहे हो? मैंने कितनी सारी बातें सुनी है यार, तुम पढ़ने नहीं दे रहे, मुझे कुछ सुनना नहीं चाह रहे, आवाम सुनेगी तो मारेगी। आप मौजू तो नहीं पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे? नहीं पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, चलिए डर क्यों रहे हो? इतना डर क्यों रहे हो? सुनो मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी एक ऑडियो मुझे किसी एक देवबंदी ने मौजू बताओ, मौजू बताओ, ये बता रहा हूँ, मौजू ही बता रहा हूँ, मौजू बताओ। हाँ मौजू ही बता रहा हूँ, मौजू ही बता रहा हूँ, मौजू ही बता रहा हूँ। सुन तो ले अल्लाह के बंदे, मौजू बताओ। हाँ ऑडियो तुमने ऑडियो सुनी है ना, तो ऑडियो हाँ मैंने सुनी है, उसी के मुताबिक मौजू पेश कर दो ना। हाँ उसी के मुताबिक मौजू ही तो बता रहा हूँ। क्या जरूरत तुमको? मौजू ही बता रहा हूँ मैं। जो तुमने गुफ्तगू की थी तो एक किसी बरेलवी से कहा कि मैं इल्मे गैब रसूल पर बात करूंगा, तुम मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हें काफिर साबित करूंगा। हाँ जी, वो ऑडियो तुम्हारी मैंने सुनी, और वो पता नहीं किसी देवबंदी ने मुझे भेजी थी, 7 या 8 मिनट समथिंग इसकी करीब ऑडियो थी जी। ठीक है, आपने बड़ी जो है ना ददीरा दहनी से चैलेंज किया उनको कि आओ मुझसे इल्मे गैब रसूल पर बात करो। क्या दहनी से? ददीरा का मतलब क्या होता है? अच्छा मैं इसका मीनिंग बताऊंगा अब आपको। हाँ अच्छा तो मुझे लुगत खोलनी पड़ेगी। हाँ पढ़ो। मतलब तुम अभी मौजू पर नहीं आओगे, आप मौजू भी बता दिया मैंने। ददीरा होता है, क्या होता है? तुमको उर्दू नहीं बोलना, ऐसा तुमने इस्तेमाल क्यों करते हो तुम? नहीं क्या होता है, तुमको आती है? दरीदा। ठीक है दरीदा चले, मेरी मिस्टेक। पहले अरे मान लिया मैंने भाई, मान लिया, चले मेरी मिस्टेक। अपने को आलिम बताने के लिए जुमला इस्तेमाल करते हो। मैं तो कहता नहीं मैं आलिम हूँ, मैंने कभी कहा है मैं आलिम हूँ, मैंने कभी कहा मैं आलिम हूँ। अली असगर यार झूठ क्यों बोलते हो? तुमने इस्तेमाल क्यों किया ददीरा? नहीं ठीक है मेरी मिस्टेक, मैं बोला माई मिस्टेक। तुम कैसे बात करोगे मेरे से? अरे अल्लाह के बंदे ददीरा बोल, मैंने मान लिया, मैं कहता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज अल्लाह के करम है मुझ पर और अहले सुन्नत पर, बरेलियत पर, कि हमारे अंदर कोई खामी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं हमारे अंदर ये चीज अनानियत है ही नहीं। आपने बोलो अभी कहाँ बोलोगे, टाइम हो गया, टाइम हो गया। जब तुम इधर उधर की बात करोगे तो मैं जवाब तो दूंगा ना। मौजू बताओ। तो तुमने कहा कि साहब मैं इल्मे गैब रसूल पर, उनको बरेलवी थे कोई साहब बात कर रहे थे कि मैं तुमको काफिर साबित करूंगा, आओ मुझसे बात करो इल्मे गैब रसूल पर, बार बार आप उनको ये बात कर रहे थे। ठीक है जी। हाँ। तो इल्मे गैब रसूल अलैहिस्सलाम पर बात करने के लिए मैंने फोन किया है। चलो तुम्हारा दावा माहुकुम पेश करो। शराइत, हाँ ठीक है, शराइत क्या लेते? शराइत क्या? सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा आपसे अली असगर साहब, आप हमारी गुफ्तगू इल्मे गैब रसूल अलैहिस्सलाम पर शुरू हो रही है। हाँ तो सुन तो ले मेरी बात को। अब मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी मौजू के तहत कर रहा हूँ। आप सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आया देवबंदियों और बरेलवियों के माबैन इल्मे गैब रसूल अलैहिस्सलाम को लेकर इख्तलाफ कहाँ है? आया हुक्म पर है, इतलाक पर है, या मिकदार पर है? हाँ जी चले बिस्मिल्लाह करें, बताएं। क्योंकि जहाँ इख्तलाफ है बात हम वहाँ करेंगे। ठीक है जी, तय कर लेते हैं। ठीक है शर्त तय कर लें, लेकिन इब्तिदा यहाँ से करेंगे क्योंकि आवाम को समझ आना चाहिए कि देवबंदियों में और बरेलवियों में इल्मे गैब रसूल को लेकर आखिर इख्तलाफ है कहाँ। तुम मुझे बोलने दो, आवाम को समझ आ जाए। चलो बोलो। मतलब तुमने कसम खाई है कि मुझे बोल देने दोगे, ऐसा ना? बोलो। तो शराइत तय कर लेते ना। चलो शर्तें बताओ। मुनाजरा तुम करने के लिए आया हो, मौजू तुम लेकर आया हो, दावा मैं पेश करूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने पूरी ऑडियो का खुलासा बता दिया तुम्हारी, तुम चैलेंज कर रहे थे। खामोश रहो तुम। हाँ बताओ। अब खामोश रहो। जिससे मैंने मुनाजरा का चैलेंज किया मर गया क्या? हो शमशान घाट उतर गए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल खामोश रहो, मुझे बोलने नहीं। अरे मुझे बोलने नहीं दोगे तुम? गलत जुबान नहीं। देखो मैं इस तरह गुफ्तगू नहीं करता।
देखिए मुझे जुबान तो सही से चिल्लाता है, मुझे नहीं यार, बोला। जुबान तो सही से अब इस्तेमाल मुझे करें। बोलने दो ना। चलो बोलो, तरीके से बोलो। तुमने जजीरा बोला, ये तुम्हारा जुमला ठीक है, सही है। ठीक है, वो कुछ मैंने उसको सुधार लिया ना, मैंने मान तो लिया उसको। हाँ, अब क्या तुमने तो क्या माना होना तो। चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, दरीदा। तो उसका मतलब क्या होता है? अरे भैया, अब अच्छा इसका मतलब में घुसोगे? तो अरे तुम हमारी उर्दू का मतलब बता, समझ करके तुम मुझे बोल रहे हो ये जबान इस्तेमाल ना करो। नहीं, तुमने तो गलत जुबान में तुमने गाली दी ना, ये गाली। मर गया, वो शमशान घाट पहुंच गया, वो शमशान घाट पहुंच गया, मतलब ये अल्फाज सही है? चलो ठीक है, चलो ठीक नहीं, है। एक मुसलमान को तुम शमशान घाट भेज मुझे रहे हो। बोलने दोगे? नहीं, ये तरीका सही है? अच्छा बताओ ये मुझे। दरीदा वाला जुमला सही है, ताजीम कर रहे हो मेरी। नहीं तो ये गाली कर रहे है? हो। अच्छा, ये गाली है, ये गाली के ज़िम्मे में आता है? तो तुमने इस्तेमाल किया, तुम्हें नहीं पता? तुम गाली दे रहे हो यार, वो शमशान घाट पहुंच गया, वो अकेला कलमा गो मुसलमान है, उसको तुम कह रहे हो वो शमशान घाट पहुंच गया। चलो बता इसका जवाब दो, चलो शर्त बता बताओ। रहा हूँ। नहीं, शर्त बताओ, छोड़ो। दरीदा दहन का मतलब होता है। नहीं, छोड़ो, मतलब अरे सुनो यार, हम्म, सुनो यार, तुमको तो जुमला इससे बोलने नहीं आता, तुम उसका माना क्या बताओगे तुम? चलो मैं बता रहा हूँ, छोड़ो, आगे बढ़ो। अब बता रहा हूँ, सुनो ना। नहीं, तुमने आगे मुझे बढ़ो, कहा, टॉपिक पे आओ। अरे यार अजित वासा यार, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो तुम। तो इसमें मुझे रहोगे यार, घंटा भर होने जा रहा है। मुझे बोलने दो। चलो बोलो। तुम मुझे बोल रहे हो गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब तुम मेरी उर्दू को समझ गए, लेकिन तुमने एक जुमला इस्तेमाल किया दरीदा दहन, लेकिन तुम्हें उसका मतलब पता नहीं है। क्या खामोश रहो। दरीदा दहन तुमने कहा है, खामोश रहो। अरे खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो यार। दरिया कह दिया था अभी तुमने। खामोश नहीं रहो, बात नहीं करूंगा मैं। चलो बिस्मिल्लाह करो। हाँ, तो तुमने जो दरीदा दहन इस्तेमाल किया है, उसका मतलब होता है बदजुबान, गुस्ताख, बेबाक, मुंहफट, जो मुंह में आए कहे डाले, ये उसका माना होता है। तो तुमने मेरी ताज़ीम की। हाँ, तो तुम्हारे मुंह में जो आता बग डालते हो ना, तुमने अभी कहा उसको बेचारे को कल मगो हमारी ताज़ीम है कि मेरी ताज़ीम है कि मुझ पर ये है? तो गाली तो नहीं है ना ये? क्या गाली नहीं? गुस्सा गाली नहीं है। ये गाली है, ये ऐसी इतनी बड़ी गाली है जितना तुमने कहा कि वो शमशान घाट पहुंच गया, उसको तो तुमने शमशान घाट पहुंचा दिया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इससे बड़ी गाली है। अच्छा, तो शमशान घाट में जो जाता है उसको क्या कहा जाता है? वो जलाते हैं, तो मतलब वो जल गया, बुन गया वो, जिसके लिए तुमने कहा। अल्लाह अकबर। जवाब दूं? जवाब नहीं तो मौजू पे बहुत हो गया, करीबन 20 मिनट हो गए। तुम मुझे गुस्ताख कह दिए, तुम्हारे नजदीक गाली नहीं है, मैं कैसे तुम गाली तुम्हारे नजदीक? वाह यार सब यार, कैसी यार लाचारी बेबसी है यार। आप टॉपिक क्या हुआ? रिफायत साहब, हाँ बोलो। जब कोई बंदा कोई काम हुनर छोड़ देता है कई दिन तक, तो उसके हुनर में जंग लग जाता है। नहीं, जंग नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। 6-8 महीने के बाद आए हो, तुम्हारे इस मैदान में हुनर में तुम्हारा जंग लग गया, तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। नहीं, जंग नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जंग लग गया है, जंग नहीं, बिल्कुल नहीं लगा है, बिल्कुल जंग नहीं लगा है। नहीं, जंग कह रहा हूँ मैं जंग ही कह रहा हूँ। नहीं, मैं जंग नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर कभी भी शिकार करना नहीं छोड़ता है। शराइत पेश करूँ? हाँ चलो करो। हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, शराइत नंबर 1। मैं पहले से बता रहा था कि दावा तुम मौजूद लेकर आए हो और तुम इनसे लिंक किया, दावा मैं पेश करूँ, है ना? कौन लेके आया है? खामोश रहो। अच्छा, तुम लिखा है ना? चलो शुरू करो। मैंने तुम मुझे लिंक किया। शुरू करो। हाँ, माशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है, दोनों मुनाजिर जो है, दोनों मुकाबिल, दोनों मुखालिफ। फरीक दोनों मुखालिफ नहीं होते, मुखालिफ एक होता है यार। बोलो आगे। ठीक है। मुखालिफ सबसे पहले सूरह हुमज़ा की तिलावत करेगा, अगर बहाना करेगा उसको मुनाज़रे करने का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, ठीक, आगे बढ़ो। सबसे पहले सूरह हुमज़ा पढ़कर सुनाएगा। आगे बढ़ो। है? अरे तमाम शराइत गिनाओ ना, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए यार, बरकत का देखिए यार अलीसगर, अब ये बिल्कुल करो, फिर आगे उसी सत्र कहूँगा मैं। तमाम शराइत रखो जो मुझे कबूल होगी, मैं डन कर दूंगा। नहीं, मुझे याद रहेंगी। अरे मुझे याद रहेंगी अलीसगर। तमाम शराइत अपनी गिनवाओ। जो मुझे मेरी बात सुनो। बताओ। मैं 10 शराइत पेश करूंगा, तुमको याद नहीं रहेगा। नहीं रहेगी यार, अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दी ताला। मेरे जहन के मुताबिक तुम जानते हो मुझे तमाम तर चीजें याद रहती है। तस्लीम करो, तबारक व तआला का बड़ा फजल करम है। देखो मैं नहीं, तमाम शर्तें गिन दो।
गिनाओ अपनी तमाम शराइत। मेरी बात सुनो। बताओ बताओ। आपने फोन किया है, आपने पूछा नहीं मेरे पास टाइम है कि नहीं है। आपके पास टाइम है, आप हाँ, मेरे पास है। तक बात कर। मेरी बात सुनो, फिर बोल रहे हो बीच में आप। मैं गाली दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, बोलो। तुम्हारे मुद्दे की किताब पढ़ रहा हूँ, बीच में बोल रहे हो। नहीं, कससुल अकाबिर ना पढ़ो, कससुल अकाबिर ना पढ़ो, उसके अंदर जो गालियों का ताल्लुक से लिखा हुआ है। मोतबर नहीं, तुम्हारे वसूल से मोतबर नहीं है। मैंने कहा रे कोई भी टॉपिक छेड़ो तो मुझसे सोच समझ कर छेड़ना, मेरे पास हर चीज का तोड़ है। अरे चलो आगे बढ़ो। तुम्हारे इतना वसूल से मोतबर नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खामोश रहो। हाँ, हाँ। पहली बात तो ये है, आपने मुझे फोन किया, आपने पूछा नहीं मेरे पास वक्त है कि नहीं है ज्यादा, ठीक है। और हकीकत ये मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं मसरूफ हूँ, ठीक है। मैं समझ रहा था कोई ऐसी बात करते तुम मुनाजरा छेड़ दी हो तुम। अब तुम्हारे पास, आपके पास टाइम है दोहर तक, ठीक है। लेकिन अभी तक आप शर्त से बात नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इसलिए मैं आपको वक्त दे रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर शर्त मुकम्मल न किया आपने तो मैं फोन काट दूंगा। तो अपनी तमाम खामोश रहो। सबसे पहले क्या है कि एक एक शर्त मैं रखूंगा, उसको मनवाऊंगा, अगर नहीं मानोगे तो आगे मैं फोन काट दूंगा। यार अली असगर साहब, मैं कह रहा हूँ आप तमाम शराइत मेरी दो टोक बात है, मैं खुशामद नहीं करता हूँ, मैं जिद नहीं करता हूँ। आप जिद कर रहे हैं, आप जिद नहीं कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं। आप मैं ना झगड़ा करता हूँ, मैं ना खुशामद करता हूँ, मैं झगड़ा ये जिद करता हूँ। मैं खाली शराइत की बात करता हूँ। पहली बात है, एक एक शर्त बात होगी, आप उसको मान लेंगे, दूसरी शर्त रखूंगा मैं, उसको मान लोगे, तीसरी रखूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं करूँ, अच्छा ठीक है। देखिए अली असगर साहब, हाँ ठीक है, आपने ये शर्त रखी है, हाँ सुन लें। आपने जो ये शर्त पहली रखी है, मैं कह रहा हूँ आप तमाम शर्तें गिनवा दें, जो मुझे कबूल होगी डन करूंगा, जिस पर मुझे एतराज होगा तो मैं अपना एतराज जाहिर करूंगा, आप उसका जवाब दे देंगे। आगे नहीं जाऊंगा मैं पर बात नहीं करूंगा मैं। अच्छा, एक ये मंजूर मैंगल साहब की किताब है तोहफतुल मुनाजरा, भेज दो, हवाला भेज दो। हवाला भेज दूं? अब मुकम्मल पढ़ कर सुनाओ। ठीक है, भेज रहा हूँ। मैं 5 मिनट का दिया हूँ, अगर 5 मिनट शराइत सही नहीं फोन काट दूंगा मैं, ठीक है। ये तोहफतुल मुनाजरा सफा नंबर 55। हाँ, सफा नंबर 55। आप सुन तो ले, मेरी बात सुन तो ले, आप उसूल से बात करें, आगे ना पर्सनल में देखें, आगे पर्सनल में देखें आप आगे। हाँ देखता हूँ मैं। तोहफतुल मुनाजरा के अंदर मंजूर मैंगल साहब कहते हैं, जो फरीक जिन उसूलों का पाबंद हो और उन्हें तस्लीम, किताब का नाम पढ़े, मुकम्मल नाम पढ़े, क्या नाम है इसे? तोहफतुल मुनाजिर, तोहफतुल मुनाजिर। नाम क्या है? तोहफतुल मुनाजिर। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ोगे मैं पढ़ूंगा, आपने हवाला भेजा है, मुझे पूछ रहे हो तुम? हाँ तो पढ़ तो रहा हूँ। हाँ बोलो। पढ़ तो रहा हूँ, तोहफतुल मुनाजिर सफा नंबर 55। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? जो फरीक जिन उसूलों का पाबंद हो और उन्हें तस्लीम करता हो, उसका दायरा तंग न किया जाए, कि उसे अपने उसूलों का पाबंद बनाया जाए। क्या कह रहा है तुम्हारे अकाबिर, कि उसे अपने उसूलों का पाबंद न बनाया जाए, और तुम पाबंद बना रहे हो। हाँ जी, अच्छा। उसूल मुनाजरा की बाकियत भी नहीं है यार अली असगर तुम्हें, और मुझसे कह रहे थे तुम्हें जंग लग गई है। तो सुनो मेरी बात। हाँ हो गया, अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। हाँ ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं, जो फरीक जिन उसूलों का पाबंद हो और उन्हें तस्लीम करता हो, उसका दायरा तंग न किया जाए, और कि उसे अपने उसूलों का पाबंद बनाया जाए। माशाअल्लाह, यहाँ क्या कहा उन्होंने? पाबंद हो, इनकार ना करे, उसकी बात नहीं है, पाबंद होने की बात हो रही है, इनकार की बात नहीं है। क्योंकि इनकार कर रहा हो जबरदस्त हो आप। मुझे बोलने दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इनकार कर रहा हो मैं उसूल नहीं मानूंगा, उस पर थोपो मत। ये जो पाबंद हो रहा है उसको, उसका दायरा तंग न करो। जो पाबंद हो रहा है, जो फरीक जिन वसूलों का पाबंद हो और उन्हें तस्लीम करता हो, उसका दायरा तंग न किया जाए। बिल्कुल ठीक। मतलब यहाँ वसूल की पाबंदी की बात की जा रही है, जो इनकार कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। समझो तो सही ना, जिन उसूलों का। तो ये उसूल जो तुमने अभी एक उसूल बयान किया शराई, तो इसको जरा किसी मुनाजरे की कुतुब से साबित करो कि फकत सूरह फकत और हमजा की तिलावत की जाए। हाँ जी, तुमने जो कैद लगा दी है। हाँ जी चले। सूरह हमजा बोला ही नहीं मैंने, झूठ बोला। कौन सी बोली थी? कौन सी बोली थी? तुम झूठ क्यों बोला तुमने? तो कौन सी बोली थी? क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई। सूरह हमजा कुरान में है ही नहीं। इतनी सारी बातें हो गई हैं। हाँ तो इतनी देर से बात चल रही है। सूरह हमजा कैसे कह दी? तुमको पता ही नहीं सूरह कौन सी जरूरत है कि नहीं है? हमजा कहा है मैंने? तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं। हमजा कहा है मैंने? तुमने हमजा कहा है? कुरान की बात तुम करते हो यार, जिस कुरान शरीफ को तुम गटर में डालने की बात करते हो, जो उस कुरान शरीफ का मर्तबा तुम ऐसा बताते हो। देखो ये हमेशा भाग रहा है, अलग अलग कुरान की बात कर रहे हो। अभी ये नजदीक फजाइल अवाल कुरान से बढ़ी हुई है,
मैं फंसा हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा, मैं फंसा हूँ? वो कुरान की हमसे बात करता है। हमजा बोला मैंने, हमजा बोला मैंने, यार झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? अली असगर, यही अली असगर बस क्यों आते हो रुस्वा होने के लिए तुम? यही तुम्हारी लाचारी, यही तुम्हारी लाचारी है। अच्छा तुम गलत बोलो, मैं लाचार हूँ, यही तुम्हारी मैं लाचारी है। लाचार हूँ। यही तुम्हारी लाचारी है। इस्तेमाल करो, मैं गलत, मैं लाचार हूँ। अजीब नहीं, तमाशा है यार, यही तुम्हारी लाचारी है। कोतवाल को डांटे यार। यही तुम्हारी लाचारी है। अच्छा मैं तुम क्यों आए मजाना मुनाजिर, बताओ ना तुम। नहीं तुम बहुत नहीं, तुम्हारी हालत खराब हो रही तुम्हारी यार शराइत पर। मैंने तुम्हें अभी एक स्कैन अभी तुम्हें दिया है और वो खुद हाँ। तुम्हारा मंजूर मिंगल कह रहा है कि हाँ। उन्हें अपने उसूलों का पाबंद न किया जाए, तो तुम अपने खुद साख्ता बनाए हुए उसूल क्यों थोप रहे हो मुझ पर? इसकी हाँ। क्या वजह है? अच्छा अबे बोलो बोलो। मतलब तुमने ये मान लिया कि हमारा वसूल है ये, ठीक है? तुमने कहा अपना वसूल थोपा ना जाए, यानी तुमने मान लिया ये वसूल हमारा अपना है, तुमने ठीक है ना? तुम्हारा खुद साख्ता। खुद साख्ता। अच्छा ठीक है, तो ये तुमको मंजूर नहीं है? सूरह हुमज़ा वाली जो शर्त तुम मंजूर नहीं है तुमको? सूरह हुमज़ा वाली शर्त मुझे मंजूर है नहीं है, वो बात की है। तुम इसको तुमने जो कैद लगाई है। मेरी बात सुनो। हाँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो कोई झगड़ा नहीं, अगर मंजूर नहीं भी है फिर कोई झगड़ा नहीं, खत्म ना। तुमने जो सूरह की ये कैद लगाई है इसको हाँ। तुम मुनाजरा रशीदिया उसूल मुनाजरा से जरा साबित कर दो ना कि ये। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं वो नहीं बोल रहा, तुमको मंजूर है कि नहीं है? किसको? ये शर्त तुमको मंजूर है कि नहीं है? अरे भाई मैं कह रहा हूँ इसको तुम जितनी भी शराइत है तुम्हारी एक एक गिनवा दो और हर एक को साबित कर दो, मुझे सारी मंजूर है। ठीक है चलो ठीक है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम कहोगे शर्त में कि मुझे मंजूर नहीं है मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है ना? आगे मैं दूसरी शर्त लेके आऊंगा। तुम अपनी तमाम शराइत को नहीं एक शर्त, चलो एक शर्त रखूंगा मैं। तुम कहोगे मुझे मंजूर नहीं है मैं कैंसिल कर दूंगा, तुम कहोगे मंजूर है मैं इसको रख दूंगा, ठीक है? नहीं बात खत्म। चलो दलाइल दो इस पर। हाँ तो ये तुमको मंजूर है कि नहीं शर्त? दलील दो। मैंने कहा नहीं अपनी हर एक शर्त को दलील से साबित कर दो। मैं दलील दूंगा ना। तुम इनकार करोगे मैं दलील दूंगा ना। मतलब ये आप साबित नहीं कर सकते, इस चीज को आप भी जानते हो। अरे तुम पहले तो ये तुम कहो कि तुम उसको मानते कि नहीं मानते। मैं तुम्हारी हर उस शर्त को मानूंगा, ये इनकारी है, ये नफी कर रहा हूं मैं। जो साबित होगी उसको मानूंगा मैं। ठीक है, मतलब तुमने जो सूरह हुमज़ा की तिलावत के मुतालिक मैंने जो शर्त रखी है तुम उसको इनकार करते हो। अच्छा और कैसे कहा जाए? तो तुम साफ साफ बोलने में डर क्यों लग रहा है तुम्हारे को? और कितना साफ बोलूं भाई? दोगलापना क्यों इस्तेमाल करते हो बंदा? ये दोगलापना, अरे यार जिसके अकीदे में दोगलत हो, दोगलापन छुपा हो, फिर भाग रहे हो तुमको मैं शर्त के मुतालिक बता रहा हूँ, तुम मानते कि नहीं मानते? हाँ कि ना बोलो। मैंने कहा अरे ये नफी है मेरी। मैं कह रहा हूँ अपनी हर शर्त जितनी भी शराइत है तुम्हारी जो लिख रखी है हर एक को तुम साबित कर दो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जिसको साबित नहीं करोगे उसे छोड़ दो। अच्छा तो फिर गुफ्तगू के कोई आदाब होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो फिर तुम ही तय कर दो कौन सा आदाब है, तुम बता दो मुझे। चलो बताओ, तुम शर्त रखो। चलो मैं बात क्यों रखूंगा? शर्त तुम लगा रहे हो, तुम्हारी शर्तें हैं लिखी हुई, तो आदाब का मतलब ये है कि कुछ भी थोप दो। आदाब का मतलब ये है कि ये शर्त रख दो कि रिफायत साहब जी गुफ्तगू शराइत के साथ करोगे बगैर शराइत करोगे? नहीं शराइत के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अच्छी बात है। तो हमारी शराइत आपके नजदीक बातिल है तो आप अपने शर्त रखो। क्या किस तरह से बात की जाए बताओ। अब मैं शर्त नहीं रखूंगा, अपनी शर्त रखो आप। रखो। देखिए शराइत उसूल मुनाजरा जहाँ तक मेरे इल्म में है, मैंने पढ़ा है, एक तो वक्त का तयन होता है। पढ़ा नहीं, दलील देना पड़ेगा। आपने कहा दलील दोगे, फिर आप दलील दूंगा। मैं दलील दूंगा। हाँ मैं दलील का जिम्मेदार हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो बिना दलील बात खुद करते हो, दूसरे को कहते हो किसी बात की तुम्हारे पास दलील नहीं होती। चलो ठीक है, मैं दलील देता, लेकिन आपको देखता हूँ कितनी इल्म में हो आप। चले दे दलील दे। चले आपने कहा लफ्ज़ नहीं मैंने ना बोल दिया ना, मैंने ना बोल दिया ना, तो इकरार करे इस चीज का कि दलील नहीं है मेरी इन शर्तों पर। नहीं मैं ऐलान करें। देखो मुझे बोलने दो, बोलो। मैंने ये कहा कि मैं शर्त रखूंगा तो हमारी शर्त आपके नजदीक बातिल है, तो आपने कहा कि शर्त के मुताबिक बात करेंगे, तो मैंने आपको कहा कि आप शर्त रख दो जो आपके पास दलाइल हो, आप शर्त रख दो, मैं आपकी शर्त मान लूंगा, आप दलील पेश कर देंगे। चलो बात करो। दलील आपकी शराइत उसूल मुनाजरा के खिलाफ हैं। हाँ ठीक है, तो आप रख दो ना सर। हाँ मान गए, ठीक है चले आप शर्त रखो ना। हाँ ठीक है बहुत अच्छा। शर्त रखो आप, शर्त रखो।
अब शराय उसूल मुनाजरा और अदाब मुनाजरा जहाँ तक मेरे इल्म में और मैंने पढ़ा है, हाँ सुन तो ले, अब सुना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरी जान। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, बकवास मत करो, खाली शर्त बताओ। शर्त नंबर 1 बताओ। ये टाइम नहीं है करते हुए तुम्हें करीबन 25 मिनट हो गए हैं, करीबन यही बात करते हुए। 32 मिनट हुए, 32 मिनट। तुम अच्छा, बोलो 32 मिनट हो गए। शर्त नंबर 1, जिस तरह मैं बोला 32 मिनट हो गए, 32 मिनट हो गए, लेकिन अभी भी कह रहा है बंदा टाइम नहीं है। शर्त नंबर 1 बोलो, शर्त नंबर 1 बोलो। एक वक्त का तयन होता है, मुनाजरीन का जो है मामला तय किया जाता है कि फला बार मुनाजिर रहेगा, फला मुनाजिर रहेगा, फिर जगह का मुतय्यन होता है, और फिर उसके चंद उसूल के मुताबिक जो कि मौजू होता है उसके अकॉर्डिंग रखते हुए फिर शराइत तय की जाती है। हाँ जी, हेलो, बोलो 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 बोलो। हाँ, उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि तुम्हारा मेरा जो गुफ्तगू का मामला है वो इल्म गैब रसूल है, तो हम इसके मुताबिक शराइत रखेंगे कि इसमें आया दलील क्या माखज होगा दोनों का। हाँ जी, ठीक है, माखज क्या होगा, फिर टर्न कितने कितने वक्त होगा दोनों मुनाजरीन का, बोलने का वक्त कितना दिया जाएगा। अरे शर्त रखो ना यार, क्या तुम तफसील कर रहे हो? तो यही तो बता रहा हूँ मैं, यही शर्त मुनाजरे की। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर जैसे बताओ तुम। हाँ चले, 2-3 शर्तें रख लेते हैं अपनी, ठीक है। हाँ, वक्त कर रख लेंगे, दोनों की टर्न कितनी कितनी रहेगी। अरे फिर तकरीर कर रहे हो, फिर तकरीर कर रहे हो तुम। तकरीर का कर रहा हूँ। अरे शर्त रखो ना तुम, शर्त नंबर 1 बताओ ना तुम। बता दो रहा हूँ, वक्त का तयन कर लेते हैं हम। हाँ जी, कितना वक्त रहेगा, 1 मिनट या 2 मिनट, जैसा मुनासिब हो, जैसी पॉसिबल हो। अरे बताओगे या फिर तकरीर करोगे? तो बोल तो रहा हूँ, कितने मिनट बात करनी है। शर्त नंबर 1, एक मैं बता रहा था, इस तरह आप बताओ। हाँ, एक फरीक के वक्त का रख लो, कितना वक्त रहेगा बोलने का, 1 मिनट या 2 मिनट। शर्त नंबर 1 ये हो गई, चलो ठीक है। वक्त का तयन कर लेते हैं, कितना पॉसिबल रहेगा तुम्हारे हिसाब से। 1 मिनट रखिए या 2 मिनट? हाँ चलो, तो 1 मिनट 2 मिनट वाला शर्त जो है मुझे दलील से साबित कर दूँ। अच्छा, वक्त का तयन करना साबित करूँ मैं? नहीं, 1 मिनट 2 मिनट। अच्छा, ये जो मैंने मिनट का नाम लिया है, 1 मिनट या 2 मिनट। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, चलें, घुमन साहब का उसूल मुनाजरा खोल लें, आप किसी का और का ना खोलें। खोलो, फिर पेश कर दो। हाँ, कहीं और जाने की जरूरत। अच्छा, ये जो बात कर रहे हो ना तुम, 1 मिनट या 2 मिनट दिखाओ। तुमने मुनाजरा रशीदे का बात बोला था, तुमने रशीदे का बात बोला, अभी तुम हमारे घर पे आ गए। ये वसूल है। खामोश। जी। जब मैं शर्त रखी, तुमने कहा मुनाजरा रशीद पेश करो, कहा था तुमने। हाँ ठीक है, वो मुसल्लम क्यों आ रहे हो? वो मुसल्लम है ना दोनों के नजदीक। नहीं, मुसल्लम है। हाँ, तुम नहीं मानते? इलियास गुम्मन का जो उसूल है तुम्हारे नजदीक मुसल्लम है? नहीं, एक ये उसूल है मुनाजरे का, आपको पता होगा अली असगर साहब, इल्जामुल हसमी बिमा हुमा काहिलहु। क्या बोला? इल्जामुल हसमी बिमा हुमा काहिलहु। इल्जामुल हसमी क्या? अरे तुमको जब अरबी नहीं आती तो क्यों घुस रहे हो इसमें? क्या है? हसनी कहा है मैंने? क्या? इल्जामुल हसमी हसमी बिमा हुमा काहिलहु। बीमार हुआ, ये बीमार हुआ का मतलब क्या बताओ? अल्लाह अकबर। देख ले अहबाब, ये है अली असगर देवबंदी। इल्जामुल हसमी हुआ काइल का दलील दो। नहीं बोलो, पढ़ो, वापस से पढ़ो। तुमने बोला इल्जामुल हसमी बिमा हुआ काइल, ये हसम हा से तुमने बोला है। ये हा से बोला मैंने? क्या सामने गौर करें आप, ये देवबंदी। अच्छा, वापस से पढ़ो, क्या उसूल है ये? तुमने इल्जामुल हसम है, खा को नहीं, सही पढ़ो, सही दुरुस्त क्या है, पढ़ो बच्चे, पढ़ो। खसम होता है, हसम नहीं होता। नहीं, वापस से पूरा पढ़ो, पूरा उसूल पढ़ो। ये तुमने पढ़ा इल्जामुल हसम बिमा हुआ काइल, तुमने पढ़ा है। मैंने जो पढ़ा रिकॉर्डिंग में आ गया है, तुम पढ़ो अभी से। बोलो, फिर बताओ, मैंने बोल दिया बीमा हुआ काइल पढ़ा है। नहीं, पढ़ो, वापस से पढ़ो। तुमने यही बोला है। मैंने क्या बोला वो रिकॉर्डिंग में आ गया, तुम बोलो। तुमने जो बोला दलील दो। अरे भाई, अरे तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम दलील दो ना। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो वापस से। तुम दलील क्यों नहीं दे रहे हो? अल्लाह के बंदे, मैं तो उसूल मुनाजरा इलियास गुम्मन का दे ही रहा था, तुमने ये दूसरी गुफ्तगू छेड़ दी। पढ़ो वापस से, चलो। तुम बोलो, मैं फिर बोलता हूँ। तुम बोलो। नहीं, इल्जामुन क्या बोला था मैंने? हसमी बोला था मैंने। हाँ, पढ़ो। हाँ, तुमने हसमी बोला था। चलो आगे बढ़ो। चलो मैं बोलूँ? पढ़ो, पूरा पढ़ो इसको पहले, इसी उसूल को पढ़ो पहले। हाँ बोलो, पढ़ो इस उसूल को पढ़ो। अरे फिर बोलने नहीं दे रहे? हाँ बोलो। फोन क्यों करते हो तुम? जब बोल तुम फोन क्यों करते हो तुम? यार अली असगर, तुम फिर बोल देने दे रहे। बोलो। जब मैं शर्त पेश कर रहा था, तुमने कहा कि मुनाजिरा रशीदिया से तुमको दलील देना है,
अब जब तुम सर पेश कर रहे हो, तुमने कहा ये तुम्हारा इलियास घुम्मन से मैं पेश कर रहा हूँ, और हाँ। तुमने बोला दोनों के नजदीक मुसल्लम है कौन? मौलाना इलियास घुम्मन। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे मुझे बोलने दोगे? मुझे बोलने दोगे? मुझे बोलने दोगे? मैंने इलियास घुम्मन को आपका मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे बोलने दो। तुम झूठ बोलोगे तो मैं जवाब मुझे बोलने दोगे? मुझे बोलने दोगे? मैंने मुनाज़रा रशीदिया को, अपनी बारी में रशीदिया को, मैंने मुनाज़रा रशीदिया को मुसल्लम कहा है, इलियास घुम्मन बेटी चुम्बन को नहीं। इलियास घुम्मन बेटी चुम्बन को नहीं कहा अली असगर, इलियास घुम्मन बेटी चुम्बन को नहीं। बदतमीजी करोगे? मुझे बोलने दोगे? मुझे बोलने दोगे? मुसल्लम बना रहे हो उसको, क्यों मुझे बोलने दोगे? मुझे बोलने दोगे? नहीं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने उसको मैं बोलूँ ना? मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? नहीं, झूठ से पहले तुम रुजू करो अपनी। मुझे बोलने दोगे नहीं? बताओ। हाँ बोलो, तुमने झूठ बोला, बोलो। मुझे बोलने दोगे नहीं दोगे? यार मैं उसको अपना मुसल्लम तुम 2 मिनट लवादत करता रहा, जो अपनी बेटी के साथ लवादत करते हुए पकड़ा गया। देखो सामने देखा, गाली दे रहा है, समझे? गाली दे रहा हूँ मैं, मेरे पास सबूत है। मतलब खामोश नहीं हो रहा। एक चलो पढ़ो, अच्छा वापस से 2 पढ़ो। हाँ भाग जा, चल भाग। हाँ अब वो बोलूँ मैं? हाँ भाग जा, भाग भाई, भाग ले। उसे बोलने नहीं रहा है, समझो सामी, आप फैसला करें। जब मुझे बोलने नहीं दे रहा, इससे क्या बात की जाए? इसीलिए आप गायब था कई दिन तक सामीन, इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैं बोलूं? बचा है भैया कुछ? मैं बोलूं? हाँ बोलना, बोल, अल्लाह के बंदे बोल, झूठ मत बोल, मत। सामीन, जब इसने मैं शर्त पेश कर रहा था तो मुझे कहा मुनाज़रा रशीदी से देना, ठीक है। जब मैंने इससे कहा कि तुम शर्त पेश करो तो ये कहा कि तुम्हारा इलियास घुम्मन से ये है। मैंने उससे कहा कि तुम तो अभी तो मुनाज़रा रशीदी की बात कर रहे थे, तो कह रहा तुम मौलाना इलियास घुम्मन की दलील क्यों दे रहे हो? इसने कहा दोनों के नजदीक मुसल्लम है। मैं बोला इलियास घुम्मन, तुमने इनके मुतालिक कहा दोनों मुसल्लम, बाद में तुमने कहा मुनाज़रा रशीदिया, तुमने इलियास। अरे मुझे बोलने नहीं दोगे? मतलब तूने भागने की तैयारी कर ली है कि मुझे बोलने नहीं दोगे? भागूंगा? नहीं, मुझे बोलने नहीं दोगे? फोन काट के भागने की तैयारी कर ली मुझे है? बोलने नहीं दोगे? झूठ बोलकर नहीं, झूठ बोलकर फोन काट के भागने की तैयारी कर ली है? मुझे नहीं बोलने दोगे? अल्लाह के बंदे झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने मुनाज़रा रशीदिया को मुसल्लम किताब कहा है, ना कि इलियास घुम्मन बेटी चुम्बन को कहा है। मैं उसको क्यों अपना मुसल्लम कहने लगा? तुम्हारी अम्मी कुछ नहीं चुमा है ना? अपनी बेटी को चुमा है। मैं कह रहा हूँ बेटी चुम्बन, तुम्हारी अम्मी को चुमा है, तुम्हारी माँ को चुमा है, आप गालियाँ शुरू करती, बदतमीजी शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी। ये देखो, ये बेटी को चुमा है, वो अपनी बेटी को चुमा है, अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी को, वो अपनी को चुमा है भाई, अपनी को चुमा है। तो अपनी बेटी को चुमा है तो फिर तुम्हारी बीबी को चुमते हो? तुम्हारे हकाम शरीयत अंदर तुम्हारा मौजूद लिखता है अपनी बेटी को सिमटना और खींचना मसला तुम्हारे यहाँ जायज है शर्मगाह को, लेकिन मौलाना इलियास घुम्मन के बारे में कह रहा हूँ, उनके बेटे को चुमा है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बेटी को नहीं चुमा है, तो इस बात किस बात दोहरा रहे हो? सफेद ठीक, तुम्हारी माँ को नहीं चुमा, तुम्हारी बहन को नहीं चुमा, तो ये जुमला अनवार शरीयत का जवाब लेके जाना अली असगर, भागना मत फोन काट के। तुम्हारी माँ को नहीं चुमा, तुम्हारी बेटी को नहीं चुमा, तुम्हारी बीबी को नहीं चुमा, वो अपनी बेटी को चुमा है। तुम्हारे अहकाम शरीयत के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारा मुजद्दिद कहता है कि बीवी का शौहर अगर शर्मगाह खींचे और मसले और ये चूमे सब जायज है बीवी का। तो कोई चुमे, तुम इतना क्यों कर रहे हो? हवाला सेंड करो। तुम्हारी माँ को नहीं चुमा, तुम्हारी बेटी को नहीं चुमा, तुम्हारी अम्मी को नहीं चुमा, अली असगर मान गया कि वो अपनी बेटी को चुमा तो जाहिर है उसको अपनी बेटी को चुमना और उसको हाथ रखना मसलना और यही कहना चाह रहे हो? आए अल्लाह के मोहब्बत कर रहे थे, तो एक साथी एक साहबी ने कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मैं तो नहीं करता। अल्लाह के नबी ऐसे फरमाया अगर तुम्हारा दिल पत्थर हो गया तो मैं क्या करूं? तुम रजा खन्नासी का दिल पत्थर हो गया है, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, तो तुम ये तुम्हारी बदबख्ती है, तुम्हारी बदबख्ती है, तुम्हारी महरूमी है। हमारा बेटी चुम्बन एक मिनट, तुम्हारी बेटी चुम्बन के बदले को अल्लाह के रसूल के हदीस कोशिश कर रहा है, तोहमत बांध रहा है। तो रसूल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के रसूल ने ये तरबियत की उम्मत की कि अपनी बेटियों के साथ लवादत करो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इतनी बड़ी तौहीन कर गया तो उसने
इलियास दुमान ने तो तू बात नहीं करेगा, तू बात नहीं करेगा, भी की अपनी तू बेटी झगड़ा करना है, तू झगड़ा करना है, तू झगड़ा करना है। तुमने अभी हमारे शरीयत सुनो अली असगर, तुम जवाब लेके जा रहे हो, तुमने शरारत कहा नहीं करते हो तुम। नहीं नहीं सुनो अली असगर, यही वजह है शरारत तुम्हारे लिए मौत और आजाद है। तुमने हमारे शरीयत पर एतराज किया है अल्लाह को लेकर, जवाब लेके जाना, जवाब लेके अली असगर, ये फतावा आलमगिरी नजमुल फतावा के अंदर, अली असगर फतावा आलमगिरी सुनो, फतावा आलमगिरी फतावा नजमुल फतावा के अंदर भी यही बात है, यही बात, लेकिन तूने जो इसमें ऐड कर दिया कि अलग को चुमना, नहीं भागो मत अली असगर, मेरी बात सुनो अली असगर, जवाब लो, अनवारे शरीयत का जवाब लो, अनवारे शरीयत का जवाब लो, जलजला आ चुका है। अली असगर मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं, भागो मत, घबराओ नहीं, सामने भागने लगा, अभी हमारे शरीयत का हमारा बड़ा जवाब नहीं दे रहा, इलियास दुमान बेटी चुम्बन का बदतमीजी को ये हदीस साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अली असगर सुनो, अली असगर बात सुनो, हमारे शरीयत का जवाब लो, भागो मत, हमारे शरीयत का जवाब लो, रिफायत की अम्मी को नहीं चुमा, रिफायत की बीवी को नहीं चुमा, रिफायत की बहन को नहीं चुमा, रिफायत की भाभी को नहीं चुमा, रिफायत चाची को नहीं चुमा, तुम्हारे खाला को नहीं चुमा, तो जवाब ले, क्यों एतराज है? जवाब ले अली असगर भाग गया